Hello students, I am Professor Anup and I am here to help you for solving a question bank of Bharatiya Vidyapit. Okay, Bharatiya Vidyapit College of Engineering, which is in Navi Mumbai. So this is a small help, but before that, I would like to say you that see, by just doing a question bank, you can't achieve or you can acquire that much knowledge of the subject. For proper learning of a subject, you have to study the subject nicely, you have to understand the subject nicely. Okay, so I would never prefer that just only do question bank. Okay, for I purpose, yes, I know you can. Okay, because obviously your schedule is too busy, and because of that we prefer to do this. Okay, that's a small help. Let's start with the question bank, and I think on my screen you can see this is my first sum. Okay, so let's start with that. Okay, so alternating voltage is represented by V is equal to 1.414 sine 377t. Find the maximum value, frequency, time period, instantaneous value of the voltage at t equal to 3 millisecond. Now this is very easy sum. Okay, normally these sums come for 5 marks or a 4 marks in compulsory. So they have given V. Okay, I would take a red. They have given V, that is equal to 1.414 sine of 377 of t. Now you need to compare this by the standard equation. The standard equation of a sinusoidal voltage is V is equal to what? Vm sine of omega t. So from this itself you understand that Vm is 1.414 volt, and that is something said to be the maximum value. So they are asked you maximum value, that's done. Now coming to frequency, if you compare t के बाजू में कौन है? Omega. So t के बाजू में 377. So what is omega? That is 2 pi f. 2 pi f is equal to what? 377. So f is equal to 377 divided by 2 pi, and you get a frequency 377 divided by 2 pi, and the frequency is around 60 hertz. Yes, you can take that. 60.00 आया होगा, but take it 60 hertz, that's fine. Now comes to time period. Time period को t कहा जाता है, and that is nothing but what? 1 by frequency, 1 by f. So that is 60 inverse. So your answer is 0. Capital T is equal to 0.01667 and second. अच्छा, so also understand बच्चा लोग, ये क्या होता है? Time period. Time period to complete one cycle, one positive and one negative cycle complete करने के बाद complete time period है. Okay, that's your time period. Now after that, instantaneous value. Now they need instantaneous value at time this. So what is meaning of that? आपको time दिया गया है 3 millisecond, right? इस पे आपका वोल्टेज का वैल्यू क्या है ये पूछा है. सिंपल, ये आपका इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन जो है, मेन इक्वेशन जो उन्होंने दिया है, उसमें सिर्फ जाके आपको पुट करना है. सो V इज इक्वल टू व्हाट? 1.414 साइन ऑफ 377 into 3 millisecond, 3 into 10 raised to minus 3. कैलकुलेटर में पुट करो 1.414 साइन ऑफ 377 into 3 into 10 raised to minus 3, right? And the value comes to be V is equal to 1.27 volt. Now that's the value. Okay, hope you are clear with this, and that's the sum. Now students, let's go with the next sum. Okay, so what's my next sum is, so that's the next sum what they have given you. Okay, चलिए शुरू करते हैं. Now calculate the average value and RMS value. One of the most important question paper में भी, and बहुत easy दिया आपको ये. Okay, so in such sums सबसे पहले आपको क्या देखना होता है बच्चा लोग? You have to see that कि आपको दिया क्या है, right? आपको क्या दिया है? So 0 to pi
you have a waveform. From pi to 2 pi you don't have a waveform. So आपकी एक साइकिल कहाँ कंप्लीट होती है? So it's basically starts at 0 and ends at 2 pi. एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में खुद को पहले ये क्वेश्चन पूछने का कि ये वेवफॉर्म मेरा सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है. सो ये वेवफॉर्म मेरा अनसिमेट्रिक है. सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जो आपको एक्स एक्सिस के ऊपर दिख रहा है वही आपको नीचे दिखना चाहिए, तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक. जैसे आपका साइनोसाइडल वेवफॉर्म. सो सिमेट्रिक में एवरेज वैल्यू में यू कैन फाइंड इट फॉर ओनली हाफ साइकिल, बिकॉज फुल साइकिल के लिए फाइंड करोगे तो एवरेज 0 आएगा. सो यहाँ वैसे तो है नहीं. सो व्हाट यू वांट टू राइट फर्स्ट, सबसे पहले पीरियड लिख लो. सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट पीरियड कम्स टू बी 2 पाई. ये आपका फुल साइकिल का पीरियड है. एंड दैट राइट ए इक्वेशन. सी दे माइट हैव गिवन v. सो इक्वेशन v इज इक्वल टू, तो पहले 0 टू पाई है, दैट मीन्स थीटा इज फ्रॉम 0 टू पाई, एंड दूसरा है पाई टू 2 पाई. फ्रॉम 0 टू पाई आपको साइन दिख रहा है, एंड आई से दैट द मैक्सिमम वैल्यू शुड बी vm, राइट. मैक्सिमम वैल्यू सामने वाले ने देना चाहिए. सो दैट इज vm. सो vm साइन थीटा, एंड फ्रॉम पाई टू 2 पाई आपका वेवफॉर्म 0 है. सो ये मेरा वेवफॉर्म है. ओके, चलिए अब हमें एवरेज फाइंड करना है. सो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ वी एवरेज. वी एवरेज का सिंपल फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय व्हाट? 1 डिवाइडेड बाय टोटल बेस लेंथ. टोटल बेस लेंथ है आपका 2 पाई. 0 से 2 पाई आप सिर्फ इंटीग्रेट करोगे v विथ रेस्पेक्ट टू थीटा. सो ये आएगा मेरा 1/2 पाई. फिर आएगा 0 टू पाई, क्योंकि आपको ब्रेक करना पड़ेगा. 0 टू पाई में vm साइन थीटा है. सो दिस इज vm साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू d थीटा. सिंपल. ओके, नाउ प्लस नेक्स्ट इज pi to 2 pi, and this is 0 with respect to d theta. सही है. So as I can say, v average that is equal to 1 divided by 2 pi. vm is constant. आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा लिखना है, वो है माइनस कॉस थीटा. लोअर इज 0, अपर इज पाई. ओके, एंड दैट्स इट. आप ये कैलकुलेटर में भी कर सकते हो. कीप योर कैलकुलेटर इन रेडियन मोड. एक इंटीग्रेशन का साइन होता है अल्फा के नीचे, जस्ट प्रेस दैट. आपको साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है. साइन लिख लो, अल्फा एक्स वेरिएबल करके यूज कर लो. 0 इज योर लोअर लिमिट एंड अपर इज पाई. आप सिर्फ इक्वल टू प्रेस कर दोगे. इतना सब पुट करने के बाद योर वैल्यू इज 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 पाई. डिवाइडेड बाय 2 पाई. सो फाइनली आंसर आपका क्या आया? 0.318 times of vm. So this is v average. Okay, once you do with v average, you have to come with vrms. So I write vrms. So vrms आपको वापस you have to find from 0 to 2 pi के लिए आपको vrms find करना है बच्चा लोग. अब vrms के टाइम क्या होता है? पहले make square here and take your base length, and directly from 0 to 2 pi you need to make square with respect to theta. Up now you know that your integration is valid for only 0 to pi, and from 0 to pi your integration is vm. उसका स्क्वायर करना है, vm स्क्वायर sin square theta with respect to d theta. सही है. So v square rms that is equal to 1 divided by 2 pi. Okay, vm स्क्वायर आपका कांस्टेंट है. साइन स्क्वायर थीटा को आपको अगर इंटीग्रेट करना है तो आप राइट लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 विथ रेस्पेक्ट टू थीटा. तो हम लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई आउटसाइड, ये 2 बाहर ले लिया. ये है vm स्क्वायर. 1 का इंटीग्रेशन थीटा, कॉस 2 थीटा का आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2. लोअर लिमिट लोअर 0 और अपर आपका पाई. बट एनीवेज मैं इतना सब करने से अच्छा आई एम शोइंग ऑल दिस थिंग्स, बट उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन पुट करता हूँ. आई यूज इंटीग्रेशन साइन. मेक श्योर दैट योर कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियन मोड. फिर ब्रैकेट ओपन करो, साइन के साथ और एक ब्रैकेट आएगा, अल्फा एक्स ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, एंड लोअर लिमिट इज नथिंग बट व्हाट 0 एंड अपर लिमिट इज पाई. ओके, सो मैंने साइन स्क्वायर थीटा डाला है अभी, इक्वल टू प्रेस किया. So मुझे आया 0 to pi sin square theta का वैल्यू, and that I need to divide by 2 pi. So dividing by 2 and pi, so I got some value 1/4 करके वैल्यू है, but that's not my final value क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में v स्क्वायर rms है. तो v स्क्वायर rms मतलब बच्चा आपको अंडर रूट लेना है, राइट. सो अंडर रूट प्रेस करके आंसर प्रेस करके आपको फाइनली वैल्यू आ रहा है 0.5. सो 0.5 एंड vm स्क्वायर, यहाँ जो vm स्क्वायर था उसका भी अंडर रूट लोगे तो vm आएगा. Hope you are clear with this.
Okay. I've taken a snapshot for your reference. Okay, now let's go with the next sum. आप next sum देख लीजिए. क्या है? फाइंड द एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनोसाइडल वेवफॉर्म. लवली, बहुत इजी सम है. पहले वेवफॉर्म दिया था, यहाँ आपका स्टैंडर्ड वेवफॉर्म है. सो हु इज योर स्टैंडर्ड वेवफॉर्म हियर? पहले स्टैंडर्ड वेवफॉर्म बना लो. साइनोसाइडल वेवफॉर्म ऐसा होता है, दिस इज वी, एंड साइनोसाइडल वेवफॉर्म बोला है तो करंट बोला नहीं, वोल्टेज बोला नहीं, तो यू कैन फाइंड इट फॉर वोल्टेज और करंट, किसी के लिए भी चल जाएगा. ये है Vm एंड इसका नेगेटिव है माइनस Vm. दिस इज नथिंग बट थीटा. दिस इज 2 पाई, दिस इज पाई, दिस इज 0. होप यू आर क्लियर विद दिस. अब बच्चा लोग, आपको समझने लायक बात बताता हूं मैं. आपको फाइंड करना है पहले V एवरेज, बराबर है. आपको पहली बात क्या समझनी है? दिस इज बेसिकली ए सिमेट्रिक वेवफॉर्म. इट इज ए सिमेट्रिक वेवफॉर्म, बराबर है. तो सिमेट्रिक वेवफॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा? यू हैव टू वर्क फॉर ओनली हाफ साइकिल. आप एवरेज के लिए सिर्फ हाफ साइकिल के लिए काम करोगे, ओनली हाफ साइकिल. ओके, सो व्हाट आई कैन से, वी एवरेज इज इक्वल टू हाफ साइकिल में आपका बेस लेंथ आएगा 0 to पाई, यहां 0 यहां पाई. सो 0 to पाई में व्हाट्स द इक्वेशन? अच्छा, इक्वेशन पूरे का इक्वेशन आप लिख सकते हो. v इज इक्वल टू व्हाट? Vm साइन ऑफ थीटा. तो ये पहले ही लिख लो आप, क्योंकि फ्रॉम 0 to 2 पाई यही मेरा इक्वेशन है. सो दिस इज Vm, दिस इज साइन थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा. सो यहाँ Vm आ जाएगा बाहर, यहाँ आ जाएगा पाई. इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा. लोअर इज 0, अपर इज पाई. सही है. सो यू कैन पुट दिस इज Vm, दिस इज नथिंग बट पाई. कॉस थीटा, चले आप ये पुट कर सकते हो. दिस इज नथिंग बट व्हाट? कॉस 0 एंड दिस इज कॉस पाई. पुट कर दो एंड फिर V एवरेज का वैल्यू आई एम राइटिंग फॉर यू. ओके, सो मैं तो वापस वही करूंगा. आई विल गो विद इंटीग्रेशन. आई विल कीप साइन अल्फा एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा. लोअर इज 0, अपर इज पाई, इक्वल टू प्रेस कर दिया मैंने. एंड सिर्फ डिवाइड बाय क्या करूंगा मैं? डिवाइड बाय आई विल डू पाई. सो आंसर शुड बी 0.637. एक्चुअली 6366 आता है, तो मैं उसे 0.637. And wonderfully this gives you also relationship between the average value and the maximum value. ये हो गया आपका V average. इसी तरीके से आप V RMS भी फाइंड कर सकते हो. सो V RMS में आपको स्क्वायर लिखना है. आप यहाँ हाफ के लिए करो, फुल के लिए करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप हाफ के लिए कर रहे हो, मेक श्योर यू राइट पाई हियर एंड यू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to पाई. किसको? V स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू थीटा. सो ये हो जाएगा 1 upon पाई. सही है. ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा पाई. दिस इज नथिंग बट Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विद रेस्पेक्ट टू डी थीटा. सो आई कैन से Vm स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई. साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 विद रेस्पेक्ट टू थीटा, एंड द लोअर लिमिट इज व्हाट? 0 to पाई. सही है. सो आप बोल सकते हो V स्क्वायर RMS इज इक्वल टू, यू विल गेट वैल्यू. ये आ जाएगा Vm स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 पाई, 2 बाहर ले लिया. 1 का इंटीग्रेशन थीटा, cos 2 थीटा का आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2. लोअर इज 0, अपर इज पाई. सिंपल है. एंड फिर सीधा सीधा आप 1 V RMS लिख सकते हो. वापस मैं क्या करूंगा? आई गो इन इंटीग्रेशन, आई प्रेस साइन, पहली ब्रैकेट ओपन करूंगा क्योंकि मुझे साइन x द होल स्क्वायर करना है. अल्फा एक्स क्लोज कर दिया, स्क्वायर कर दिया, लोअर लिमिट 0 रख दिया, अपर लिमिट पाई रख दिया. एंड इतना सब करने के बाद, इक्वल टू प्रेस करने के बाद, आपको डिवाइड किससे करना है? साइन स्क्वायर थीटा को. डिवाइड बाय पाई, डिवाइड बाय आपको पाई कर दो. सो 1/2 आंसर आया है. एंड इसका आपको अंडर रूट भी लेना पड़ेगा, मेक श्योर. सो योर आंसर इज 0.707 टाइम्स ऑफ Vm. सो दैट्स योर फाइनल आंसर. होप यू आर क्लियर विद दिस. ओके. Okay students, let's go with the next sum. If we see this sum, an RLC circuit has a current that lags behind the voltage. चलिए शुरू करते हैं. So सबसे पहले क्या दिया है? उन्होंने दिया है फेज. फेज is how much? 45 degree, which is lags. Okay.
उसके बाद सेकंड क्या बोला है, फेज 45 बोला है कि इंडक्टेंस हैज ए मैक्सिमम वैल्यू. सो इंडक्टेंस मैक्सिमम वैल्यू मतलब VL मैक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VC मैक्स. चलिए ये तो सही हो गया एकदम. मतलब इससे तो मैं ये भी जान सकता हूं कि VL इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VC, क्योंकि अगर मैक्सिमम वैल्यू इक्वल है तो ऑब्वियस है RMS वैल्यू भी आपके 2 टाइम इक्वल मीन्स अगर ये रिलेशन मैक्सिमम वैल्यू में है तो RMS वैल्यू में भी वही रिलेशन होगा. उसके बाद आपको क्या दिया है, दे हैव गिवन यू इक्वेशन ऑफ VL दैट इज 300 साइन ऑफ 1000t. ओके, फिर रेजिस्टेंस दिया है 20 ओम. ओके 20 ओम. फिर उसके बाद बोला है इंडक्टर और कैपेसिटर वैल्यू फाइंड करने. चलिए आई स्टार्ट विथ माय सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो मैंने यही लिख दिया, VL इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VC. ओके, सो बेसिकली VL क्या होता है, I इंटू XL दैट इज इक्वल टू 2I इंटू XC. तो और एक रिलेशन मिल गया मेरे को, दैट्स गुड. सो XL इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ XC हो गया. अब मैं आगे क्या कर सकता हूं देखो. सो मेरे पास क्या है, आई हैव बेसिकली फाई है और R है. सो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, एक फॉर्मूला होता है जो हमेशा मैं क्लास में है ना गणेश एकेडमी में मैं सिखाता हूँ. मैं हमेशा बोलता हूँ वहां कि एक AC में फॉर्मूला है जो हमेशा अपना सेवियर हो सकता है, वो है PF इज इक्वल टू दैट इज पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल टू R बाय Z. आई थिंक वो मुझे यहाँ बचाएगा, दैट इज cos phi बराबर है. एंड cos phi इज बेसिकली व्हाट, R divided by Z. So I can say phi is nothing but what, phi is 45, R कितना दिया आपको 20 दिया है divide by Z. So Z can be 20 divided by cos 45, 20 divided by cos of 45, that comes to be 28.28. 20 divided by cos 45 28.28. चलिए Z तो मिल गया. सी एक बात बच्चा लोग हमेशा आपको समझना चाहिए, आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है C और L. C और L कौन से फॉर्मूले के अंदर होता है, XL और XC में. तो जब तक वो नहीं मिलेगा ना कुछ कर ही नहीं सकते. चलिए अब Z का अपने पास फॉर्मूला है. व्हाट इज Z का फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ व्हाट, R स्क्वायर प्लस. अब सर्किट इज लैग सर्किट मतलब इंडक्टिव सर्किट. So who is greater, XL minus XC the whole square. सही है. So Z मेरे पास है, yes. So Z is equal to, एक काम करते हैं यहां लिखते हैं R square, XL is equal to twice of XC. So I can write this as, यहां मैं लिख लेता हूं twice of XC minus XC the whole square. चलिए यहां से मिलता है, यहां से क्या मिलेगा, Z square that is equal to what, R square plus 2XC minus XC will be XC का स्क्वायर. आई थिंक इसमें से आपके पास आपको XC मिल जाएगा. सो XC square would be Z square minus R square. Z square is what, 28.28 का स्क्वायर माइनस R is 20 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट. चलिए सो वो आया 28.28 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर. ओके ये कर लिया मैंने एंड अंडर रूट आंसर. सो आंसर कमिंग टू 19.99. आई पुट एज 20 ओम. तो अगर XC आ गया मुझे, ओके इफ आई गेट XC मुझे XL आ जाएगा क्योंकि XL इज ट्वाइस ऑफ XC. सो XL will be equal to twice of 20. So I can write XL equal to what, 40. चलिए गुड, ये भी मिल गया. अब XC और XL मिल गया है, सो आप फ्रीक्वेंसी से C और L फाइंड ही कर सकते हो. सो फ्रीक्वेंसी की जब बात आती है तो यहां से मुझे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ये क्या है, ओमेगा. ओमेगा इज व्हाट, 1000. सो 2 पाई f इज इक्वल टू 1000. सो यहां से f आ जाएगा, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 पाई, दैट कम्स टू बी 159.15. ये आया आपका फ्रीक्वेंसी.
हर्ट्ज, ओके। यू गेट फ्रीक्वेंसी xc से आपको फॉर्मूला आता है 1/2πfc, सो c इज इक्वल टू व्हाट 1/2πfxc। सो यहाँ जाके पुट करो, आपको c मिलेगा 1 divided by 2 pi f is what 159.15 into xc is 20। इतना पुट करने के बाद मुझे आ रहा है 5 into 10 raised to 5, 5 into 10 raised to -5 फैरेड। सॉरी मैंने 5 बोला था, इट इज -5। वैसे यहाँ से भी आपको आ सकता है xl is what, xl is 2 pi fl, so l will be nothing but xl divided by what 2 pi f, तो यहाँ से वो भी आ जाएगा। so what is xl, xl is 40, so I can say 40 divided by 2 pi into 159.15, वो कर लिया 0.04, 0.04 हेनरी, ये आया आपको इंडक्टर। तो इस तरीके से आप C और L फाइंड कर सकते हो। तो ये आपका C था, ये आपका L था। सो ये इक्वेशन में मुझे F काम में आ गया, ओके। VLVC काम में नहीं आया, बट हाँ वो रिलेशन से दो रिलेशन मिले मुझे, वो मुझे यहाँ यूज हुआ। होप यू आर क्लियर विद दिस सम, ओके। Okay students, now let's go with the next sum. You can see this sum. Now मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ ये सम इतना इजी आपको क्यों दिया गया। I mean seriously very easy sum. 3 वोल्टेज दिया आपको। First is VR which is 10 volt. The voltage across resistor, inductor, capacitor. Inductor is 15 volt and capacitor is again 10 volt. आपको total V मांग रहा है। Now this is very easy, वो voltage triangle से ही आ जाएगा। V is equal to what, under root of VR का square plus VL minus VC the whole square. Now what is VL minus VC? You know VL is greater than VC, right? So actually put कर रहा हूँ, मुझे भी सोच में पड़ रहा हूँ कि इतना easy sum क्यों आया। VL is what 15 minus 10 the whole square. Just solve this. 10 square plus 15 minus 10 the whole square, and the answer is, I think answer is 11.18. Hope that is easy, right? Let's go with the next sum. Let's see. I'll take a snap of this. Okay students, now let's go with the next sum. You can see an impedance of 2 plus j6 ohm is connected in series with two impedance of this and this which are in parallel. Okay, तो कहने का मतलब क्या है उनका। So आपको हमेशा इस टाइप ऑफ सम को, इसको एक्चुअली पैरेलल सर्किट का सम कहते हैं। पैरेलल सर्किट में क्या होगा, आपको इम्पिडेंस दिया जाता है, मतलब जैसे डीसी में रेजिस्टेंस दिया जाता है ना, R1 R2 R3, वैसे ही सेम वैसे ही समझो, कंसेप्ट वैसे ही लगाओ, सिर्फ एसी का फॉर्मूलेज लगेंगे। सो उन्होंने क्या बोला है, इम्पिडेंस ऑफ दिस। सो मैं बोलता हूँ ये इम्पिडेंस मेरा Z1 है, ओके, एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद टू इम्पिडेंस। सो ये Z2 ये Z3। तो कहने का मतलब है उनका कि एक Z1 इम्पिडेंस ये दो पैरेलल इम्पिडेंस के साथ ये इस तरीके का कुछ तो सर्किट है, राइट। एंड फिर उन्होंने बोला है कि मुझे टोटल आई दो, ओके, ऐसा बोला है क्या, ओके। लेट्स चेक, कैलकुलेट द सप्लाई करंट, हाँ बोला ही ऑब्वियसली, एंड द पावर फैक्टर। सो आपको आई चाहिए, आपको पावर फैक्टर चाहिए, सर्किट कनेक्टेड है 200 वोल्ट पे, ओके। लेट्स कंटिन्यू नाउ, व्हाट यू कैन सी। चलिए, सो अच्छा इसको देख के तो इतना समझ में आ रहा है Z1 Z2 इज पैरेलल। सो टोटल Z बार अगर मैं फाइंड करने जाऊं तो आएगा Z1 बार प्लस Z2 Z3 डिवाइडेड बाय व्हाट, Z2 प्लस Z3। सो कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। व्हाट इज दिस फॉर्मूला, कि दोनों जब पैरेलल होता है दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय दोनों का एडिशन, सही है। सो यू कैन से Z bar that is equal to, ये पूरा मैं कैलकुलेटर में पुट करूंगा। सो गो इन कॉम्प्लेक्स मोड एंड स्टार्ट विथ 2 ब्रैकेट में 2 plus 6i
then plus put डब्बा by डब्बा and then in the above वाले डब्बे में Z2 into Z3. So Z2 is this, Z3 is this. So bracket 10 plus 4i and the second bracket is 12 minus 8i, 12 minus 8 I, and in the denominator 10 plus 4i, चलिए, plus 12 minus 8i. ओके, इतना सब पुट करने के बाद इक्वल टू प्रेस कर लेता हूं एंड शिफ्ट 2 3 प्रेस करके आर एंगल थीटा में फॉर्मूला फाइंड करूंगा, सॉरी आंसर. So that comes to be what, 10.66 angle of 32.99. lovely. So मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मेरे त्रिमूर्ति मुझे मिलने चाहिए, Z, V और I. So मेरे पास Z आ गया, मेरे पास V है, I आ चुका है अपने को. So I is equal to what, V divided by Z. So V का फॉर्मूला V कितना दिया उन्होंने, 200, और Z आपके पास आया 10.66. जिस तरीके से मैं फाइंड कर सकता हूँ 200 divided by 10.66, your answer is 18.76. ये आपका करंट है, सिंपल. चलिए, करंट आ गया, यहां से मुझे फाई भी आ चुका है. सो क्या बोल सकते हो बच्चा लोग आप, यू कैन से दैट पावर फैक्टर इज व्हाट, cos of phi. So cos of phi is this 32.99. So आपको सिर्फ cos of 32.99 सब्स्टिट्यूट करना है वहां. So 0.838, 0.838. So this is my power factor. Okay, lovely, easy. और कुछ बोला ही नहीं था, बहुत सिंपल सम था ये एक्चुअली. Okay, I'll take a snap of this. Now let's go with the next sum. So two impedance this and this are connected in parallel across 200 volt 50 hertz supply. Okay, चलिए, दो impedance दी है आपको, so वहां से शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूं Z1 बार which is 14 plus 5j, Z2 बार which is 18 plus 10j. ये दोनों पैरेलल है with 200 वोल्ट with frequency of 50 हर्ट्ज. सही है. एडमिटेंस ऑफ ईच ब्रांच. अच्छा, तो ये दोनों ब्रांच का आपके पास क्या है, Z. एडमिटेंस का मतलब क्या होता है, आपको फाइंड करना होता है Y1 बार which is reciprocal of Z1 बार. So I can say Y1 bar, always try to give answer in polar. So 1 divided by Z1 is what, 14 plus phi I, and converting to polar it gives me, I'll directly write into polar, answer is 0.06 angle of minus 19.65 degree with mo. Okay, similarly you can say with Y2 bar which is 1 divided by Z2 bar which comes to be what, 1 divided by Z2 is what. अच्छा, यहाँ चाहिए तो मैं पुट करता हूँ, Z1 was 14 plus j phi and Z2 bar is nothing but 18 plus 10i. So you can say Y2 bar that is equal to, put 1 divided by 18 plus 10i and converting to polar I get the answer of 0.048 angle of minus 29.05 mo. Okay, this is Y2, this is Y1. मुझे each branch का बोला था उसने, admittance of each branch and total admittance. अच्छा, what will be total admittance? पैरेलल में Y bar is equal to होता है Y1 bar plus Y2 bar. So total admittance में आपको सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है. Okay, तो इसे मैं ऐड करता हूं इसके साथ 0.06 विथ एन एंगल ऑफ minus 19.65. ओके, डायरेक्टली ऐड कर रहा हूं एंड कन्वर्ट कर रहा हूं आर एंगल थीटा में. तो आपको आंसर आ रहा है बच्चा लोग 0.1082, दिस इज 0.108 एंगल ऑफ minus 23.85 विथ mo. दिस इज योर टोटल. नाउ नेक्स्ट बोला है करंट इन ईच ब्रांच, टोटल करंट. चाहिए, सही है. चलो, सो वोल्टेज इज समथिंग इन अ पैरेलल, योर वोल्टेज इज ऑलवेज सेम, राइट. पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है एंड करंट इज डिफरेंट. सो आपको करना क्या पड़ेगा, आप
सुनिए, so उन्होंने बोला है करंट इन ईच ब्रांच, सो आपको I1 फाइंड करना पड़ेगा. I1 would be nothing but, see, I can say I1 bar is voltage is common both of them divided by Z1 bar. So I say this is 200 angle 0 divided by Z1 bar. Okay, Z1 bar मैंने क्या लिया था 14 plus 5J. Okay, so I get I1 bar which is equal to 200 angle 0 divided by 14 plus 5I. Converting to polar gives me answer of 13.45 angle with minus 19.65 डिग्री विथ एम्पियर. इसी तरीके से मुझे I2 बार भी आ जाएगा विच इज V बार डिवाइडेड बाय Z2 बार. तो मैं सीधा सीधा आंसर लिखता हूँ. सो ऊपर है 200 एंगल 0 divided by what Z2 bar, and Z2 is what 18 plus 10I, right? Pressing equal to going in R angle theta, and the answer I get as 9.71 angle with minus 29.05. Okay, that's the answer. So ये तो हो गया. अब टोटल करंट में आप क्या करोगे, I बार इज इक्वल टू सीधा सीधा I1 बार प्लस I2 बार कर लो बच्चा लोग. सो ये I1 बार है, ये I2 बार है. ऐसे ही कैलकुलेटर में पुट करना है. ब्रैकेट डालो 13.45, मैं कॉम्प्लेक्स में हूं, विद एंगल ऑफ minus 19.65, ब्रैकेट क्लोज, प्लस प्रेस करके दूसरा ब्रैकेट 9.71 with an angle of minus 29.05. Okay, प्रेस इक्वल टू गो इन कॉम्प्लेक्स, दैट इज शिफ्ट 2 प्रेस करके आप 3 में चले जाओ. द आंसर व्हाट यू गेट इज 23.08 with the angle of minus 23.58. Okay, simple. ये डिग्री, ये एम्पियर. सो दिस इज योर टोटल करंट. चलिए वो भी आ गया. अब नेक्स्ट बोला पावर एंड पावर फैक्टर ऑफ ईच ब्रांच. चलिए पावर फाइंड करना है. आई गो हियर. सो ईच ब्रांच पावर एंड पावर फैक्टर. सो जब P1 आएगा, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, V I1 cos ऑफ phi1. चलिए V क्या है आपका 200, I1 is 13.45, cos of phi1, and phi1 is nothing but 19.65. सो यहां से आपको P1 आ जाएगा. सो 200 into 13.45 into cos of 19.65. 2533. Answer comes to be 2533.34 watt. In the similar manner, you can say P2. So P2 का फॉर्मूला क्या आएगा, V I2 cos phi2. So सिंपल है. So V मतलब क्या है, वही आपने जो टाइप किया है. V तो आपका वही आएगा, I2 आपका चेंज हो जाएगा. So I2 changes to 9.71 cos of, I can say phi2 29.05 equal to, press करो 1697. So answer is 1697.68 watt. आपको यहाँ चाहिए तो फॉर्मूला लिखता हूँ V I2 cos of phi2. ओके, बहुत सिंपल है बच्चा लोग. अगर आप यहाँ देखते हो अच्छे से, ये है आपका phi1, ये है phi2. ओके, होप दैट इज क्लियर विथ यू. वो हो गया. एंड टोटल पावर फैक्टर. अच्छा, PF भी मांगा है. सो PF मतलब क्या, यहां से PF बाजू में लिख लेता हूं, PF1. सो cos of 19.65, so that comes to be 0.94. okay, this is PF of this angle. अब यहां PF2 लिखता हूं. सो cos of 29.05. सॉरी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरा सम यहीं इसी स्क्रीन पे बिठा पाओ. ओके, सो ये phi2 है. PF2 मतलब क्या, cos of phi2. सो cos of 29.05 0.87. simple. This is PF1, this is PF2. Hope you are clear with this. Okay, and the last thing is total power factor.
टोटल पावर फैक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सो दिस इज द फाई, राइट? इफ यू से पीएफ, दैट कम्स टू बी cos of pf is nothing but 23.85, so that comes to be 0.91. so ये आया 0.91 and that's the final answer. Hope you are clear with this. Okay students, now let's go with the next question. What's my next question? Derive the relationship between phase and line voltage, currents and star and delta. Okay, now this question is very big. Actually this comes for around 10 marks because star भी बोला है और delta भी बोला है, दोनों connection बोला है, सही है? So पहले मैं star का करूंगा, फिर मैं delta का बनाता हूँ. Okay. So let's start. So now when it comes to star connection, पहले star connection का diagram बना लो. Now I can say this is R, this is Y, this is B. So this is the star connection, what I'm connecting. Now this has a line current of IR, इसके अंदर बच्चा लोग जाएगा IY और ये है IB. So ये है तीन लाइन करंट. लाइन करंट को हम लोग कहते हैं IL. IL is equal to what? IR, IY and IB. सिंपल, ये लाइन करंट हो गए. फिर आई कैन से वोल्टेज, इन दोनों के बीच में वोल्टेज VRY, इन दोनों के बीच में वोल्टेज VYB, ओके, एंड इन दोनों के बीच में वोल्टेज VBR. सिंपल. चलिए ये भी हो गया. इनको नाम देता हूं मैं VL लाइन वोल्टेज है, VRY, VYB एंड VBR. सही है. अब अपने को पता है कि ये न्यूट्रल है, ये पॉइंट क्या है? R है. सही है बच्चा लोग. एंड ये पॉइंट है Y एंड ये पॉइंट है B. अब this has a phase. Okay, this three of them has a phase. So what I can say? I can say कि यहां जो करंट जा रहा है उसको मैं नाम रखता हूं IRN. ओके, इसके अंदर जो करंट जा रहा है उसको मैं नाम रखता हूं IBN, और इसमें जो करंट जा रहा है उसको मैं नाम रखता हूं IYN. So I can say I have three phase current. एक है IRN, एक है IBN और the third one is IYN. Correct. The similar way I can say I have a voltage between R and N, तो उसे हम बोलते हैं VRN. इसमें बोलता हूं VYN और इसमें बोलता हूं VBN. वेरी गुड. दिस इज द सिंपल वन. सो वहां के भी हम तीन नाम लिख लेते हैं. सो VPH is equal to what? VRN, VYN and the third is VBN. ओके, ये हो गए अपने सारे वोल्टेज और करंट, फेज वोल्टेज. So L means line and PH means phase. So this is line current, this is line voltage, phase current, phase voltage. So we need to find relation between them. So what I say now, R और Y के बीच में KVL अप्लाई करते हैं. So KVL between R and Y. So KVL between R and Y means what? इसका वोल्टेज VRY, जिसको मैं रखता हूं बार में, VRY. From here it goes here R to N. So that comes to be what? R to N में VRN voltage and then N से Y. See N से Y जा रहा हूं, so ध्यान रखना कि आप VNY लिखो and फिर N से Y जाके the loop completes and comes to Y. That is equal to what? 0. So I can say VRY that is equal to what? VRN प्लस VNY. चलिए
अब वी आर वाई का नाम क्या है? वी आर वाई इज वी एल, तो इसको मैं लिखता हूं वी एल बार. वी आर एन इज बेसिकली व्हाट? वी आर एन. ओके, तो थ्री फेज में एक बात आपको समझनी चाहिए. आर का फेस होता है 0 डिग्री, वाई का फेस होता है लैगिंग 120, और बी का फेस होता है लैगिंग 240. सो इसके वजह से आर एन को हम लिखते हैं बीपीएच एंगल 0 एंड प्लस, प्लस से अच्छा हम एक काम करते हैं. व्हाट विल डू, वी विल बेसिकली इसको कन्वर्ट करते हैं. तो इसको मैं यहां ही कन्वर्ट कर लेता हूं. इसको लिखा वी आर एन, एंड इसे एन वाई के जगह पे वाई एन लिखते हैं, बिकॉज फेज इज ऑलवेज फ्रॉम वाई टू न्यूट्रल. सो दैट्स वाई दैट इज वाई एन. सो आई कैन से दिस कम्स टू बी माइनस वी वाई एन इज नथिंग बट, मैंने बोला वाई का फेज कितना है? -120. सो वीपीएच एंगल -120 डिग्री. सही है. So I can say VL bar is equal to what? VPH 1 angle 0 minus 1 angle minus 120 degree. Simple. If you put this in calculator में put करते ही आपको आएगा VL bar is equal to √3 VPH. आपको आएगा √3 angle 30. √3 angle 30. Now this gives me a derivation that VL is equal to what? √3 ऑफ VPH. ये एक डेरिवेशन आता है जहां लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का डेरिवेशन रिलेशनशिप निकलता है. एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट? VL लीड्स. अब वहां पॉजिटिव 30 आया, सो VL लीड्स VPH बाय 30 डिग्री. वेरी सिंपल. ओके, एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से दैट, सी आप अगर यहाँ देखते हो जो IR है वही IRN बन रहा है, राइट? सो आई कैन से बाय सर्किट IR क्या था? IL करंट था, और वही वापस क्या बना? IRN, मतलब वही मेरा IPH बना. सो यहाँ सीधा सीधा सर्किट में लिख सकते हो दैट इज लाइन करंट इज इक्वल टू नथिंग बट व्हाट? फेज करंट. ओके, सो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन स्टार. ओके, आई विल जस्ट टेक अ स्नैप ऑफ दिस टू शेयर यू. So now let's go further for a delta. Okay, now when I go with delta, what changes? See, okay, circuit बनाते हैं delta का. Now when it comes to delta, now these are your three terminal. This is R, this is B, and this is Y. Okay, so you got that this is R, this is Y, and this is B. Okay, now what you can say, let's name everyone. So first I am naming this. So similar way जैसे हमने स्टार में किया था ना, वैसे ही this is IR, this is IY, and this is IB. तो ये मेरे तीन लाइन करंट. सो लाइन करंट कौन कौन है? एक IR है, एक IY है, और एक IB है. ओके, सो ये IL है. सो उसी तरीके से मेरे IPH भी आएंगे. IPH इज नथिंग बट आई कैन से फेज करंट. अभी फेज करंट देखो, जो फेज में जाएंगे, ओके, जो कॉइल में जाएंगे. सो R से Y, तो इसका नाम रखता हूं मैं IRY. ओके, ये RY हुआ पहला करंट, और फिर इसे नाम रखता हूं YB, क्योंकि Y से B जा रहा है. ये हुआ YB, एंड द थर्ड इज IBR. ओके, सिंपल. ये हुआ IPH. अब हम नाम देते हैं वोल्टेज का. वोल्टेज का जब नाम देंगे तो यहाँ हुआ VRY, यहाँ हुआ VYB, और इनके बीच में BR. बराबर. सो दिस इज बिटवीन R and Y, दिस इज बिटवीन Y and B, and this is between R and B. Okay, similar way यहाँ VRY वोल्टेज आएगा R और Y के बीच में. यहाँ VYB वोल्टेज आएगा that will be between Y and B, और यहाँ आएगा VBR that will be between B and R. So वहां भी आप सबसे पहले VL लिखोगे, तो VL is this VRY पहला वोल्टेज, VYB दूसरा वोल्टेज, एंड BR इज द थर्ड वोल्टेज. सो ये लाइन वोल्टेज हुए. सो फेज वोल्टेज में भी तीन आएंगे. पहला है
VRY, दूसरा है VYB एंड द थर्ड इज VBR। तो आपको यहाँ ही समझना चाहिए कि सर्किट में क्लियर दिख रहा है कि VL इज इक्वल टू VPH आता है, सो डेल्टा में ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। ओके चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं बाय KCL। ओके सिंपल है, हमने स्टार कनेक्शन जब किया वहां हम KVL यूज करते हैं, यहाँ हम क्या यूज करते हैं KCL। अब KCL में क्या होता है, KCL आप कहीं भी अप्लाई करो, R Y B कहीं भी, सो KCL एट R हम R पे अप्लाई कर रहे हैं। तो व्हाट KCL सेज, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। सो हु इज इनकमिंग, इनकमिंग इज नथिंग बट व्हाट, IR is incoming and IBR is incoming. So I can say IBR is incoming, that is equal to what, IRY is leaving, right? So तीनों फेज में, so I can say IR is equal to what, IRY minus IBR, simple. Okay, so IR क्या होता है, लाइन करंट होता है, IR is nothing but what, लाइन करंट, IRY is equal to what, IRY comes as IRY, so R to Y का फेज है, so you can say that is IPH एंगल 0 एंड BR का फेज है IPH एंगल माइनस 240 डिग्री। सही है, चलिए, सो यहां से अगर आप IPH कॉमन लेते हो, 1 एंगल 0 माइनस 1 एंगल माइनस 240 डिग्री, इसे सॉल्व करोगे तो IL बार इज इक्वल टू व्हाट, √3 IPH आएगा, बट एक ही फर्क आता है, यहाँ -30 आता है। सो यू गेट ए रिलेशन ऑफ IL इज इक्वल टू व्हाट, √3 ऑफ IPH, दिस इज वन रिलेशन यू गेट, and the second is IL lags IPH by 30 degree. Lovely. This is delta derivation. ये दोनों derivation आपको पूछे गए, you have to do it. Okay. Now let's check the next question. Okay students, let's go with the next sum. So I can see that sum number 9 जो है वो ये है, 3 impedance each of this are connected in star. Okay, मतलब ये 3 phase का sum है, बहुत easy sum है. Okay. ट्रस्ट मी, इट विल हार्डली कंप्लीट इन 2 मिनट्स। सो आपको सबसे पहले जो दिया है वो है ZPH, आपको Z दिया है, दैट इज दिस, कनेक्टेड इन स्टार। तो हमेशा एक बात याद रखने का 3 फेज में कि स्टार दिया है डेल्टा दिया है, वो चेक करना है। सो 3 फेज का मैंने दोनों डेरिवेशन आपको बता दिया, दोनों आपको रिलेशन भी समझ गए, अभी वही रिलेशन हम यूज करेंगे। सो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट व्हाट, 50 हर्ट्ज, राइट? वोल्टेज इज हाउ मच, 400 वोल्ट। कैलकुलेट द पावर एंड पावर फैक्टर, पावर पूछा है, पावर फैक्टर पूछा है ऑफ द लोड, ऑल्सो कैलकुलेट द पावर ऑफ द इंपिडेंस विच आर कनेक्टेड इन डेल्टा। अच्छा, मतलब यही जब डेल्टा में कनेक्ट होगा तभी भी पूछा है, डेल्टा में कनेक्शन जब आएगा सो पावर पूछा है इस केस में। चलिए शुरू करते हैं, आई स्टार्ट विथ हियर। सबसे पहला काम जो ZPH दिया है उसे कन्वर्ट कर लो, 6 + 8I, व्हेन यू कन्वर्ट इट R एंगल थीटा में कन्वर्ट करो, सो वो आ रहा है ZPH बार इज इक्वल टू व्हाट, 10 एंगल 53.13, राइट? चलिए ZPH आ गया। अब आपको समझना चाहिए जो V दिया जाता है दैट इज द RMS वैल्यू एंड दैट इज माय 9 वोल्टेज। तो हम पहले स्टार का कर रहे हैं, स्टार में IL इज इक्वल टू IPH एंड VL इज इक्वल टू व्हाट, √3 VPH, सही है। सो मेरे पास VL है तो मैं VPH फाइंड कर सकता हूं, दैट इज नथिंग बट व्हाट, VL डिवाइडेड बाय √3। सो व्हाट इज VL, दैट इज 400 डिवाइडेड बाय √3, सो VPH कम एज 400 डिवाइडेड बाय √3, so that is 230.94 वोल्ट, ये आपका VPH आया। VPH और ZPH आ गया, ZPH 10 है, ZPH देखो ऊपर जो मैग्नीट्यूड है ना वहां आपका ZPH है, यू गेट ZPH, यहां से आपको IPH आएगा एंड लकीली जो IPH होता है वही IL होता है स्टार में, सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, VPH डिवाइडेड बाय ZPH। So I can say the value will be VPH is 230.94 divided by 10 ZPH, so वो आ रहा है 23.09 एम्पियर। चलिए गुड, सो ये आया मेरा IL, सही है।
अब इतना तो आ गया, मुझे चाहिए पावर फैक्टर। सो इफ यू सी वेरी नाइसली, ये जो आया है मुझे, यही अपना फाई, बराबर, तो मेरे को पावर फैक्टर आ जाएगा, दैट इज कॉस ऑफ व्हाट, 53.13। सो यहां से पीएफ निकलता है cos of 53.13 and that comes to be 0.6। ये आया पावर फैक्टर, सही है। अब इसके बाद हम आगे जाते हैं, पावर पूछा है, पावर ऑफ थ्री फेज इज व्हाट, √3 VL IL cos phi, right? So capital P is equal to √3, VL is how much, 400, IL is how much, 23.09 into cos phi is nothing but 0.6 पावर फैक्टर। सो कैपिटल P जो आएगा वो है √3 इंटू 400 इंटू 23.09 इंटू 0.6। सो पावर कम्स टू बी 9598.33, सही है। ये आया आपको पावर, चलिए दैट्स गुड। सो ये पूरा सम हुआ स्टार में, ओके, आई एम क्लियरली टेलिंग, ये सम हुआ स्टार में। अब उन्होंने क्या बोला आगे, कैलकुलेट द पावर इफ इंपेडेंस आर कनेक्टेड इन डेल्टा। डेल्टा में कनेक्ट करेगा तो बहुत कुछ चीज चेंज होगा, चेक, ओके, इसका स्नैप लेता हूं, चेक प्लीज। नाउ इफ आई कनेक्ट इन डेल्टा व्हाट हैपेंस, चेक। अब डेल्टा में जब कनेक्ट करूंगा तो सबसे पहले जो बदलेगा वो है, चलो ZPH तो यही है, डेल्टा में VL इक्वल टू VPH। सो नाउ आई से, यहां मैंने स्टार लिखा था, सो सॉरी, यहां मैं बोल रहा हूं नाउ आई एम स्टार्टिंग फॉर डेल्टा। सो डेल्टा में जो VPH है वही मेरा VL है, सो ये आया 400 वोल्ट, बराबर है। सो ZPH मुझे आ चुका है 10, तो मैं डायरेक्टली IPH पे जाऊंगा। IPH इज इक्वल टू व्हाट, वही फॉर्मूला, IPH इज व्हाट, VPH डिवाइडेड बाय ZPH, बराबर, VPH is 400 now, ZPH is 10, so IPH comes to be nothing but simple 40 एम्पियर। चलिए IPH तो आ गया, अब हम जाते हैं IPH से मुझे मिलेगा IL। IL is equal to √3 IPH, ये डेल्टा का फॉर्मूला है, ध्यान देना। सो √3 इंटू IPH is what, 40, जिससे आएगा IL, ओके। सो 40 इंटू √3 that is 69.28 एम्पियर। चलिए IL आ गया। अब डायरेक्ट पावर का फॉर्मूला यूज करो, √3 VL IL एंड cos phi। आपके पास, मैं देखो डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, √3 इंटू VL कितना था मेरा इसमें, 400 डेल्टा में, ओके, 400 इंटू नेक्स्ट इज IL is what, 69.28 into cos phi। cos phi is how much, cos phi मतलब पावर फैक्टर 0.6। सो VL IL बदलता है, सो पावर डेल्टा में 28799, this is power what you get, okay, hope you are clear with this, okay, let's check with the next sum। Okay, now let's go with the next and the last, explain EMF equation of transformer। बहुत प्यारा है एक्चुअली, ये तो पक्का आएगा पेपर में, हाँ। सो दैट इज नथिंग बट EMF इक्वेशन क्या है बताता हूं। अब जब आप ट्रांसफार्मर देखते हो, ट्रांसफार्मर का बेसिक सर्किट डायग्राम इज दिस, ओके, दिस इज बेसिकली V1, यहाँ आप सिंगल फेज अप्लाई करते हो, राइट, जिसके वजह से यहाँ EMF जनरेट होता है ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस that is shared here, you get I2 which is V2 here plus minus, okay, that's the volt, that's basically the output. What I can say, you know, see, understand, so this is the primary side, we write single phase is applied at प्राइमरी साइड। सो सिंगल फेज जो अप्लाई करते हो, सो दैट इज E इज इक्वल टू, आई कैन से EM sin ओमेगा t, ये आपने सिंगल फेज अप्लाई कर दिया, ओके।
Now, due to which I can say corresponding flux generated is, so some flux will be generated here, right? That flux is also an alternating, so उसे हम बोलते हैं phi is equal to phi m sin omega t. Understand बच्चा लोग? Okay. Now according to Faraday or Lenz's law, what I can write, E is equal to minus n d phi by dt. अब मैं प्राइमरी साइड कर रहा हूं तो आई एम राइटिंग एज E1. ओके, ध्यान देना प्लीज. सो व्हाट आई कैन से, E1 is equal to minus n. Phi is what? Phi m sin omega t divided by what? dt. चलिए, so E1 is equal to minus, I write n1 on the primary side, n1, this is phi m, differentiation of sin is what? Cos of omega t and into omega. Simple. So this comes to be E1, this is N1, this is phi m, this is omega. Cos minus cos omega t you can write as what? Sin of omega t minus pi by 2 लिख सकते हो. So मुद्दे की बात क्या है? You just need to find what is your maximum value. Okay, this is your maximum value. You can say. Now what I can say on basis of this, see if you need RMS, okay, even. So that is nothing but what? EM1 maximum value divided by root 2. ये तो अपने को पता है सिंगल फेज AC से. EM1 आपका कौन है? ये. So that is N1 phi m omega. Omega को मैं लिखता हूँ 2 pi f divided by root 2. So 2 pi को root 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4.44. So that gives me E1 is equal to 4.44 N1 phi m into f. So ये मेरा EMF equation है. This is basically EMF equation of transformer on the primary side. So similarly you can write as E2 क्या आएगा? E2 is equal to 4.44. Okay, यहाँ आएगा N2. This is nothing but phi m and that is flux. Sorry, into f. Phi m is a flux. Okay, so this is the EMF equation. यूनिवर्सिटी में भी फिक्स रहता है हमेशा, आपके यूटी में भी फिक्स रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है. ओके, सो एक्सेप्ट देन दिस आई हैव सीन दैट योर कॉलेज हैज गिवन यू सम थियोरी क्वेश्चंस. Theory questions PDF I'll share you. That's very easy. I'll share you. But all the numerical parts and the derivation part I have covered. Okay. So what I would be saying you, see, as I told you at the initial of the video also, any question bank whenever you study, that is not enough at all. That is just a shortcut, right? College question bank दे रहा है, fine. आप IIT में कर रहे हो, fine. But again the question comes, is it easy to clear BEEE in the university? No, not at all. Now if you want to learn this complete course very nicely, I am Professor Anup. You know me. I teach in Kharghar, I teach in Kalyan, I teach in Ulhasnagar. In Kharghar I teach in Ganesh Academy. You can come there. We will be soon launching a crash courses which would be enough you to cover the whole subject knowledge. You will understand nicely. Okay, so soon I would be expecting that if you want to learn seriously a BEEE subject, please meet me. आपको बहुत अच्छे से समझेगा बच्चा लोग. Okay, now this was a very short video. That was a question bank. अगर यहाँ से मेरा knowledge आपको दिखा होगा, see I am teaching this subject from last 15 years. Okay, so सवाल ही नहीं है. आपको यहाँ अगर मैं पसंद आया रहेगा तो seriously in crash course you will love it. Okay, so that would be last from me. Theory notes I will share you in the group itself, and that's it. I'm signing off. Thank you.